हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए आज हम जा रहे हैं पढ़ाने क्लास 11 का नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा रहेगा सॉल्यूशन। क्या रहेगा हमारा? सॉल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म सॉल्यूशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन? My first question is, what do you mean by solution? Solution means when you are going to mix more than one substance, whatever the components we are going to get is solution. Whatever the component you are going to get is solution. If I will explain you with the help of diagram, suppose if I have taken here one container. I have taken here one container, okay, and then I am going to add few components. I am going to add few components, say A, B, C, D. Now after mixing, what I am saying, when you are going to mix all these four components A, B, C and D, then definitely you are going to get some new. You are going to get some new substance in such a way that A, B, C, D, each and every one is going to lose its identity. What I am saying, A, B, C, D should mix in such a way that A, B, C, D, each and every one is going to lose its identity and they form a homogeneous mixture. So what is my solution? Now I will define what is my solution. Solution is defined as those phenomena in which when we are mixing two or more components in such a way that they are mixed uniform, that is homogeneous, and each individual component is going to lose its property. For example, if I have taken salt and water, I added both of them. Now after stirring salt in water, salt is going to lose its identity, water is also going to lose its identity, and we are going to get a new compound, that is salted water. Second example, if I have taken urea plus water, so what will happen? Urea is going to mix with water and it will form a homogeneous mixture, such a way that urea as well as water is going to lose its individual identity. Clear? So what do you mean by solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more component. A solution is a homogeneous mixture of two or more component in such a way that each component is going to lose its identity and are non-separable. Clear? Now the solution which is obtained is actually the combination of solute plus solvent. The solution which is obtained is actually the combination of solute and solvent, is actually the component of solute and नाउ नेक्स्ट हम जा रहे हैं देखने कि बेटा एक्चुअली सॉल्यूशन बनता कैसे और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स के नाम हैं। तो देखो बेटा, जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे को क्या बोलते हैं सॉल्वेंट।
अब हमें ये बताओ कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। हमारी पहला क्वेश्चन है कि अरे मान लो कि मैंने अगर आपको एक सॉल्यूशन दिया तो अरे आप कैसे पहचानोगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, बताओ। तो क्या बोलोगे? सॉल्यूट वही होता है जिसकी अमाउंट या क्वांटिटी कम होता है। सॉल्वेंट वही होता है जिसका अमाउंट या क्वांटिटी ज़्यादा होता है। कुछ समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट मीन्स विच इज प्रेजेंट इन lesser amount. Solute means which is present in less amount. Solvent का मतलब क्या होता है? Which is present in more amount. Which is present in more amount. मतलब अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताओ व्हाट इज सॉल्यूट, हाँ देखो कुछ बच्चे का हमने दिल का बात समझ लिया। वो बोल रहे हैं कि सर सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट कम है उसी को सॉल्यूट बोलते हैं, जिसकी अमाउंट ज़्यादा है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। सॉल्वेंट इज that quantity which has more amount of quantity। क्या आपको समझ में आया कि नहीं? yes। अब जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अरे क्या आपको समझ में आया कि नहीं कि व्हाट इज सॉल्यूशन? एक लाइन में डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे? सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। को समझ में आया? चलो अब मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, आपको बताना पड़ेगा इसमें कि कौन सॉल्यूट है एंड कौन सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं ले लिया इधर सॉल्टेड वाटर और दूसरा एग्जांपल मैं ले लिया यूरिया वाटर, तो आपको पता है कि अगर आप पानी और नमक लोगे, अगर उसको मिक्स करके अगर हमें बनाना हो सॉल्यूशन, तो डेफिनेटली एक ग्लास वाटर में आप 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालोगे, यानी पानी कितना हो गया? 1 ग्लास। सॉल्ट कितना हुआ? 1 टेबल स्पून। यानी सॉल्ट क्या हो गया? कम। पानी क्या हो गया? ज़्यादा। जो कम हुआ वो क्या हो गया? सॉल्यूट। ज़्यादा हुआ क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। अरे आपको समझ में आया कि नहीं? चलो दूसरी बात करते हैं। यूरिया वाटर, 1 बकेट पानी में 1 ग्लास यूरिया डालते हैं। अगर जो फार्मर को काम करते हुए देखे उनको पता है कि 1 बकेट वाटर में आप 1 स्मॉल कप यूरिया डालते हो, तो वाटर कितना हो गया? इतना ज़्यादा, और यूरिया छोटा सा। तो यूरिया का क्वांटिटी कम है, पानी ज़्यादा है। जिसका कम क्वांटिटी वो यूरिया क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। जिसका ज़्यादा वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और दोनों को मिक्स करने में क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आ गया तो कॉपी फटाफट करें 2 मिनट के अंदर, जल्दी। कॉपी हो गया? चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं पढ़ने बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को देखो, सॉल्यूशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा?
सबसे पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, सबसे पहला हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। जैसे अगर हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का, हम बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का, अरे बाई मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, यहाँ क्या दे दिया बाइनरी, बाई 2। तो बाइनरी सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2 कंपोनेंट्स। यानी बाइनरी में अगर हम बात करें तो इसमें हम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट का बात करेंगे और दोनों काउंट करेंगे, 1 + 1 2, तो नाम पड़ गया बाइनरी सॉल्यूशन। तो अगर मैं पूछूं बेटा व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, तो क्या बोलोगे कि बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सॉल्यूट एंड 1 सॉल्वेंट। दूसरा जो पढ़ना है आपको वो है टर्नरी सॉल्यूशन। सेकेंड वन इज योर टर्नरी सॉल्यूशन। Ternary solution is that solution which is formed by the combination of 3 components. That is, it will have solute 1 plus solute 2 plus solvent 1 2 3, 3 component, that's why name is ternary। 1 2 2 components, that's why name is binary। अब आपसे अगर हम कभी भी पूछें बेटा what do you mean by binary solution, what you will say, binary solution is that solution which is formed by the mixing of 2 components, one is solute and the next one is solvent। Ternary solution is that solution which is formed by the mixture of 3 components out of which 2 are solute and only 1 is solvent। So this is my first type of solution on the basis of component। कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? चलो दूसरी टाइप की हम बात करते हैं। Excuse me। Okay, now second qualification, second classification on the basis of amount of solute, on the basis of amount of solute। सॉल्यूट के अमाउंट पर जो डिपेंड करे। आप देखो सर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी सिंपल एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूं जो आपको समझ में आए। जैसे मान लो ये आपका अगर एक ग्लास है, ये आपका एक ग्लास है, ग्लास में आपने कुछ पानी डाल दिया है, दिस इज योर वाटर, और इसमें आपने कुछ सॉल्ट डाल दिया NaCl। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब देखो ये आपका एक नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया, ये क्या बन गया? एक नॉर्मल सॉल्यूशन बन गया। अब आप क्या करो, इसमें और पानी डालना शुरू करो। You go on adding more and more water। What I am saying? You go on adding, और अधिक से अधिक पानी डालो तो क्या हो जाएगा? इनिशियल ये मेरा पानी का लेयर था, अब पानी का लेयर कुछ बढ़ जाएगा। अरे भाई ये बताओ, जब आप इसमें पानी कंटिन्यूअस इंक्रीज कर रहे हो तो पानी का तो लेयर बढ़ेगा, लेकिन जो सॉल्ट है इसका तो लेयर नहीं बढ़ेगा, इसका लेयर बिल्कुल नहीं बढ़, क्योंकि आप सॉल्ट नहीं ऐड कर रहे हो, केवल पानी ऐड कर रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन या डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स आप पानी बहुत बहुत ऐड कर रहे हो। और एक अगर हमारा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला है और आपने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी लिया है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पानी बहुत ही कम है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड। हम इसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड। मतलब जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन। लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, तो जब पानी बहुत ही ज़्यादा हो गया तो उस कंपेयर में सॉल्यूट कम हो जाएगी। जैसे मान लो 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच क्या डाल दिया, नमक, तो चलेगा। लेकिन अगर आप 1 बाल्टी पानी में 1 चम्मच अगर आप डाल रहे हो नमक, तो 1 बाल्टी के कंपैरिजन में नमक बहुत कम है। दूसरा चीज़, अगर आप 1 गिलास पानी में 5 चम्मच आपने डाल दिया नमक, तो 1 गिलास पानी के रेफरेंस में नमक बहुत ज़्यादा है और पानी बहुत कम है। तो जहाँ पानी बहुत ही कम हो उसे क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेटेड, और जहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट क्या है हमारा, नंबर 1 इज माई डाइल्यूशन, मतलब सॉल्यूट वेरी वेरी लेस, सॉल्यूट वेरी वेरी लेस। और सेकंड हम क्या लिखेंगे, कॉन्संट्रेटेड। सेकंड हो जाएगा कॉन्संट्रेटेड, मतलब सॉल्यूट इज मोर, सॉल्यूट इज मोर। अब आपके न्यूमेरिकल में ये 2 वर्ड्स बहुत ही कॉमन रहेंगे, डाइल्यूशन। जहां भी बोलेगा 2 और मोर सॉल्यूट इज डाइल्यूट, मतलब इसमें पानी मिला देगा। और जहां वर्ड सुनोगे कंसंट्रेटेड, तो समझना इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ही कम है। तो यही 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो आपको पढ़ना है, इसका मीनिंग समझना है। कुछ समझ में आ रही है हम क्या बोले, अरे हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं पढ़ने वो ये है कि जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म आती है, एक टर्म आती है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो जा रहे हैं पढ़ने वो है कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, एक बार आप सोचो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन एक वो टर्म्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कंसंट्रेशन एक वो टर्म्स है जिससे हम सॉल्यूशन के यूनिट को मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन इज दैट टर्म विच इज यूज्ड टू मेजर द यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जो भी है। लेकिन जो सॉल्यूशन की हम बात करते हैं ये हमेशा सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में ही बात होगी। कंसंट्रेशन की जो भी बातें होंगी वो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट की टर्म्स में होगी। तो पहला क्या बात है कि कंसंट्रेशन इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट। कंसंट्रेशन जो होगा वो हमेशा सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। ऐसा क्यों, अब देखो, जैसे मान लो कि अगर आपको 5 आदमी की चाय बनानी हो, तो जो 5 आदमी की चाय बनानी हो तो आपके पास दूध कम हो या ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शुगर पर फ़र्क पड़ेगा कि अगर शुगर कम होगा तो माई चाय विल बी लेस स्वीटर, ज़्यादा होगा तो मोर स्वीट होगा। यानी जो सॉल्यूट है वही डिफाइन करेगा कि हमारा सॉल्यूशन जो फॉर्म है वो कैसा बन रहा है, डाइल्यूशन है कि कंसंट्रेटेड है। तो जो हमारा कंसंट्रेशन है ये हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट ही डिफाइंड होता है। क्या होगा बेटा, ये हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूट ही डिफाइंड होगा। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज मास और मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द मास और मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा,
की कंसंट्रेशन इज डिफाइंड एज मास / मोल / वॉल्यूम ऑफ solute to the mass / mole / volume of solvent or solution। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कैसे मिक्स करने पर बनता है, कैसे हम पहचानेंगे कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है। इस तरह से हम इसको पहचानेंगे। अगला जो आएगा नेक्स्ट टर्म, माय नेक्स्ट टर्म इज दैट कंसंट्रेशन यूनिट। जो हमारा नेक्स्ट टर्म रहेगा वो हमारा है कंसंट्रेशन यूनिट। नेक्स्ट टर्म इज माय कंसंट्रेशन यूनिट। नाउ कंसंट्रेशन यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हम क्या बोले, कंसंट्रेशन यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम डिपेंडेंट, एक हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम डिपेंडेंट पर, और दूसरा वो रहेगा जो वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट हो, जो वॉल्यूम पर इंडिपेंडेंट हो। पहला हमने क्या बोला, जो आपके वॉल्यूम डिपेंडेंट हो, और दूसरा हमने क्या बोला, जो आपके वॉल्यूम इंडिपेंडेंट हो। सेकंड हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। इसको हम क्या बोलेंगे, जो हमारा मास डिपेंडेंट हो। इस पर हम कंसंट्रेशन यूनिट को डिफाइन करेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन ये पूछते भी हैं कि सुनो, आपके जैसे जेई मेंस में या मेडिकल में या कभी कभी आपके बोर्ड में जो एमसीक्यू आते हैं, इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइदर मास और वॉल्यूम टेम्परेचर। तो इसके थ्रू मैं आपको इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहला जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, और दूसरा जो मास पर हमारा डिपेंडेंट रहेगा। क्लियर है। तो सबसे पहला अगर हम पॉइंट बात करें, पहला पॉइंट बात करें, हाँ, तो अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंट या वॉल्यूम डिपेंडेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये फर्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दूसरा जो आता है वो रहता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहला क्या है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दूसरा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा जो आता है वो रहता है मोलैरिटी, थर्ड वन इज योर मोलैरिटी, एंड फोर्थ वन इज योर नॉर्मेलिटी। फोर्थ वन इज योर नॉर्मेलिटी। अगर हम बात करें जो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट है या जो मास पर डिपेंड करता है, तो सबसे जो पहला आता है वो होता है परसेंटेज बाय वेट। द फर्स्ट वन इज योर परसेंटेज बाय वेट। जो दूसरा आता है वो रहता है आपका मोल फ्रैक्शन। जो तीसरा आता है वो आपका रहता है मोलैलिटी। थर्ड वन इज योर मोलैलिटी एंड फोर्थ वन इज ppm। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, पार्ट्स पर मिलियन। फुल फॉर्म इज पार्ट्स पर मिलियन।
तो ये जो आपके 8 कंसंट्रेशन यूनिट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक बार क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये सारे के सारे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये सारे के सारे टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। ये मास पर डिपेंड करते हैं, ये मास पर डिपेंड नहीं करेंगे। ये वॉल्यूम पर डिपेंड करते हैं, ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेंगे। कुछ समझ में आया? चलो फटाफट आप इसको एक बार कॉपी करो, हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने को। चलो आपके हम इजी के लिए इसको हम नाम दे देते हैं ग्रुप ए और इसको नाम दे देते हैं ग्रुप बी। एक एक करके हम पूरी पढ़ाई करेंगे। क्लियर है? चलो चलो हम पहला बात करते हैं परसेंटेज। माय फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। माय फर्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। क्या इसका मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है ऊपर नीचे, ऊपर वाले को हमेशा हम बोलेंगे सॉल्यूट और नीचे वाले को हमेशा हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर। क्या बोले हम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट in 100 ml of solution. Now what is the meaning of percentage V by V? कि volume of solute in milliliter present in 100 ml of solution। और नाउ आपका पहला क्वेश्चन, सर आपने यहाँ 100 ही क्यों लिया? हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम 1000 लें। को समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? आपके मन में एक डाउट हो सकता है, अरे सर क्या बात करते हो, यहाँ पर आपने 100 क्यों लिया? यहाँ तो हम चाहे तो 10 ले सकते हैं, आई कैन टेक 1000। नहीं, क्योंकि यहाँ हम बात क्या किए हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज की बात जब भी होगी याद रखना परसेंटेज आउट ऑफ 100 ही होता है। इसीलिए आप यहाँ फोर्स हो 100 लेने के लिए। कुछ समझ में आया? तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml divided by volume of solution in milliliter into 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर समझ में आपको आ गया प्लीज कॉपी इट फास्ट। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि व्हाट इज सॉल्यूशन डिफाइन इन 1 लाइन। किसी ने बोला था लास्ट बेंच से, सर सॉल्यूशन वो होता है जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करने पर मिलता है। अरे हाँ कि ना? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मेरे को पता है कि जो मेरा सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी इस फॉर्मूला को और हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? देखो, इस तरह से आपको अपनी कॉन्सेप्ट को डेवलप करनी है कि भैया क्वेश्चन चाहे जिस फॉर्म में आओ, इफ आई हैव द कॉन्सेप्ट आई विल सॉल्व इट। यानी इसको और हम क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solute plus volume of solvent
इंटू 100। अब देखो जहां सॉल्यूशन था वहां क्या लिख देंगे हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला हमारा ये भी मॉडिफाई हो जाएगा कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बेटा किसी फॉर्म में आए, आप फुल फॉर्म में रहें कि मेरे को किसी फॉर्म में आए, इसको सॉल्व करना हमारा धर्म अधिकार है। क्लियर है? चलो चलो, तो पहला हम टर्म समझ में आ गया, दूसरा में आते हैं। दूसरा, चलो ये सबने कॉपी कर लिया ना, चलो मैं इस पे रेस कर देता हूं। दूसरा क्या है बेटा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हमने क्या बोला, ऊपर वाला को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। देखो मैं लिखा हूं, ऊपर वाले को सॉल्यूट, नीचे वाले को सॉल्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution। अब मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं, अरे मेरे को ये बताना कि मैंने इधर 100 क्यों लिया है। अब मेरे ख्याल से आपको आवाज, अंदर से आवाज आ रही होगी, सर मैं 100 इसलिए लिया क्योंकि यहां परसेंटेज है। अगर परसेंटेज नहीं होगा तो वो डिपेंड करेगा क्या दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। अभी सिखाए थे कि सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सिंस सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देयरफॉर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, आपको सॉल्व करना सिद्ध अधिकार है। कुछ समझ में आ रहे हो, यस और नो? समझ में आ गया? कॉपी करें इसको। थर्ड टर्म जो हमने सिखाया था वो था मोलैरिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M। अब कुछ लोग बोलेंगे सर M फॉर मंकी, मंकी नहीं होता, M फॉर मोलैरिटी। क्या बोले, मोलैरिटी। नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। Molarity is defined as number of moles of solute present per liter of solution। कुछ समझ में आ रहा है?